So hello, today we start with RCC and one of the most important chapter of RCC is stairs. So what are stairs? Its basic types, basic terms, terminology and how to design a dog leg stairs. So one of the most important topic in RCC and it comes under various sections like it may be of 37.5 marks in university board exams that comes every year or after every 6 months. So what is stairs? Stairs क्या होती हैं? Stairs or staircases are used in almost all buildings, and staircase gives access to different floors or levels of buildings. Commonly used or various types of stairs are there are various types of stairs 7, 8, 9, but basic stairs are straight stairs. Straight stairs are like in which we go straightly like this. First of all, we step here, and then next is a landing. So second type of stair is quarter turn stairs, in which is like quarter turn, like we have to turn here around like this. These are the stairs, so we have to turn here like. So this is the basic landing. Now half turn stairs, in which we have provide half landing for both the ways. This is the way of ascent and descent. Now next is dog leg stairs. Dog leg stairs are generally like this type, and then circular stairs and spiral stairs. Now, what are the basic terms in stairs which we will use in our next exam questions or numerical? So, first of all, we have a term known as flight. Flight is the distance between two landings. Like this is the start point and this is the end point. So, this is called landing 1 and landing 2. And that this distance between two landings from landing 1 to landing 2 is called flight. It is also known as sloping portion of the stairs. So, first term is flight. Second term is landing. तो लैंडिंग क्या होगी? लैंडिंग जैसे लैंडिंग इज जिसमें हम पैर रखते हैं एंड देन आफ्टर लैंडिंग कम स्टेप्स राइज. तो लैंडिंग इज इंटरमीडिएट हॉरिजॉन्टल पोर्शन प्रोवाइडेड इन ए स्टेयरकेस. नाउ नेक्स्ट इज राइज. Rise is known as vertical height of a step. Vertical height of a step, like this is the step. Now this height is called rise. And rise is different for different buildings. For residential buildings, rise is generally taken as 150 to 180 mm in our residential buildings like houses. And for public buildings like hospitals, government offices, railway stations, and so on, तो राइज इज टेकन एज 120 टू 150 mm. ठीक है, हम ज़्यादा बड़ा राइज नहीं लेते पब्लिक बिल्डिंग्स में, क्योंकि तो वहाँ पे कोई मरीज़, बीमार, बूढ़ा सबने चढ़ना है. अगर बहुत बड़ा राइज बना दिया होगा तो उनको मुश्किल हो जाएगी चढ़ने में, इसलिए राइज इज जनरली केप्ट स्मॉल एज कम्पेयर टू रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स फॉर पब्लिक बिल्डिंग्स. नाउ व्हाट इज ट्रेड? राइज तो आ गया, ट्रेड क्या होता है? ट्रेड हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू राइजर्स like this. This is riser 1, this is riser 2, and the horizontal distance between them is known as tread. ठीक, अब ये ट्रेड कितना बड़ा रखना है, कैसा रखना है, किस बिल्डिंग के लिए किस हिसाब से रखना है, वो भी एक जनरल है. जैसे कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग हमारे घरों के लिए हम ट्रेड रखते हैं वो थोड़ा छोटा रखते हैं, 200 से 250 mm. ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे कितने ही बंदे छत पे जाएंगे, 1 2 3. पर जैसे पब्लिक बिल्डिंग्स हो गए, जैसे स्कूल्स हो गए, ऑफिस हो गए, कॉलेज हो गए, या फिर हॉस्पिटल्स हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, वहाँ पे मतलब एक ही टाइम पे कितने सारे बंदे ऊपर भी जा रहे होते हैं, नीचे भी आ रहे होते हैं, उसके लिए हमें ट्रेड बड़ा रखना पड़ता है, लाइक अप टू 250 टू 300 mm. एंड दिस इज़ द बेसिक जैसे स्केच आ गया जिसमें आप सब कुछ शो किया है कि ये क्या हो गया, ये एक ट्रेड हो गया, ये राइज हो गया, ये भी राइज हो गया, ये ट्रेड हो गया. ठीक है, एंड देन जो इसके नीचे स्लैब डली होती है उसको वेस्ट स्लैब कहते हैं, इसको स्टेप कहते हैं. अगर इसके ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पे एक लैंडिंग होगी, और ये भी एक स्टार्टिंग में बेसिक लैंडिंग होगी, मेन स्टेप होगा. ठीक, और जनरली विड्थ ऑफ लैंडिंग जो हम रखते हैं वो रखते हैं हम 1.35 मीटर. ठीक है, क्योंकि विड्थ ऑफ लैंडिंग बड़ी क्यों कर रखनी होती है, ताकि अगर कोई जैसे बड़े सारे लोग होते हैं हॉस्पिटल में हम जाते हैं, कोई बंदा सीढ़ियाँ चढ़ के आता है, जैसे ही वो 7 8 सीढ़ियाँ चढ़ता है तो आगे लैंडिंग आती है, तो लैंडिंग पे आके रेस्ट करता है.
अगर हमने लैंडिंग ही छोटी सी बनाई होगी तो वो रेस्ट भी करेगा और लोगों ने ऊपर नीचे भी जाना है, तो वहाँ पे क्यास हो जाएगा। ठीक है, इसको अवॉइड करने के लिए हमने लैंडिंग थोड़ी बड़ी बनाई होती है, ताकि जिसने रेस्ट करनी है, अपनी सांस जो उसकी फूल गई होगी सीने चढ़ते हुए, वो अगर सीधी करनी है तो वो कर ले। साथ में जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए लैंडिंग बड़ी होती है। तो ये ऊपर नीचे लैंडिंग आ गई, एंड ये आ गई जनरल टर्मिनोलॉजी स्टेयर्स की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका डिज़ाइन करेंगे, किस स्टेयर का डिज़ाइन करेंगे जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेयर होती है, जो हर एक ऑफिस बिल्डिंग या फिर जनरली हर कहीं जगह पे यूज़ होती है, वो होती है डॉग लेग स्टेयर। डॉग लेग स्टेयर लाइक दिस, दैट ये आगे लैंडिंग, मेन लैंडिंग, और ये आगे स्टेयर। ऐसे लाइक दिस डॉग लेग, जिसमें मतलब कम जगह में हम यूज़ करते हैं। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको और कोई टर्मिनोलॉजी के बारे में समझना है, या और कोई बेसिक स्टेप्स या एजम्पशन जिसमें हम क्या क्या एज्यूम करेंगे, कौन सा लोड कैसे एज्यूम करते हैं, या फिर और जो भी कुछ चीज़ें हों, कौन सी टाइप की और स्टेयर्स हैं, बाइफरकेटेड स्टेयर्स हो गई। ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं।